Assalamu alaikum dear students. Today I am going to take here a new concept of in current electricity of 12th class, and that topic here is electric current density. Coming to my point here, dear students, the topic here that I am going to discuss is electric current density. Very important. This term is represented by J and is a vector quantity. Now see here, why current density? Current density is a vector quantity, but electric current is a scalar quantity. First thing, but that is not the main difference here. The main difference here is that electric current density is defined at each and every point on the surface of the conductor. In the conductor rather. At each and every point in the conductor, this current density is defined. But electric current is defined only through a cross-sectional area. किसी एरिया में कितनी चार्जेस फ्लो होंगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितनी चार्जेस फ्लो होगी with respect to time, that gives electric current. So electric current is defined for cross sectional area, but electric current density is defined for a point in the conductor. It is defined for a point. I can write this like this. देखो बेटा, current density is defined at each and every point in the conductor. So it is defined, well defined yet in the conductor when current is flowing through that conductor. But electric current is defined only through the cross-sectional area of the conductor. It is not defined at each and every point in the conductor. That is why electric current density has more status over the electric current. इस लिहाज से current density जो है ना, इसका status ज्यादा है, इसकी अहमियत ज्यादा है as compared to electric current. और दूसरी चीज ये है कि it is a vector quantity, that means it has both magnitude as well as direction. We can add or we can subtract this thing with the vector laws. But current is a scalar quantity. We can add currents or we can multiply currents or we can deal with the currents by simple laws of algebra. So dear students, coming to my own point without wasting your time, now defining what is current density, what is electric current density. तो जब भी डेंसिटी का वर्ड आता है तो डिवाइड में एरिया होता है, डिवाइड में वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर करेंगे तो इट मींस दैट करंट पर यूनिट एरिया. सी डियर स्टूडेंट्स, इफ आई एम टेकिंग ए कंडक्टर हियर ऑफ लेंथ एल, और बेटे ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया इस कंडक्टर का, मान लीजिए कि ये है ए, and if current is flowing along this direction, that is current is flowing along this direction, in this direction, that means it is connected to the positive of the battery and it is connected to the negative of the battery. तो बेटे यह डायरेक्शन किसकी करंट की, थ्रू दिस एरिया. बट करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट ऑन दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया. दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस थिंग. द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, द करंट डेंसिटी यहां लिखेंगे थोड़ा, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट की बात कह रहा है, एट एनी पॉइंट इन द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द करंट, as the electric current per unit flowing per unit area around that point, per unit area around that point, provided this area of cross section is, provided this area of cross section, this area of cross section is, this area of cross section is perpendicular to the direction of current. This A, the plane of A, the cross sectional area A is perpendicular. This is like this, and current is like this. This current is perpendicular to the plane of the area. Provided this current is, electric current here is
is perpendicular to the plane of this area or plane of this area of cross section, plane of this area. This is the exact definition of, and it is mathematically it is written as I is equal to, बेटे ये लिखते हैं I is equal to J by A, यहाँ लिखेंगे, therefore यहाँ लिखेंगे I is equal to J by A, sorry ऐसे लिखते हैं, J is equal to, sorry J is ये definition J की देनी है, J is equal to A by E. What is the definition of electric current density? That is current, ये I है, current I flowing through this area, current by area. But this area, plane of this area should be, it is just like this, plane of the area, this is area, and it should be perpendicular to this direction. See dear students, J is a vector quantity. It means it has both magnitude as well as direction. तो इसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी बताएंगे. द डायरेक्शन क्या है इसकी? It has both. J is a vector quantity, both magnitude as well as direction. The magnitude of J is simply I by A. ये है इसका बेटा magnitude form. This is the magnitude of J. अब डायरेक्शन क्या है J? The direction of J is same. The direction of J is same as that of the direction of I. I here is conventional current, and it is nothing but it is the direction of flow of, assumed to be flow of positive charges. Conventional current, बेटे ये क्या है? I conventional current, and that is nothing, that is flow of, ये क्या होता है बेटा? Flow of positive charges. So this is that the direction of J is same here as that of the current, because current is like this, it is traveling like this, and J is along the same direction. So here theta between them is 0, because the direction of J and I is same. I is not a vector quantity. J is a vector. I is a scalar quantity. Although it has both magnitude as well as direction, but according to the rules of vectors, it is a scalar quantity. See here. The direction of यहाँ direction ये magnitude इसका. The direction आप किसकी लिखेंगे? Direction क्या है इसकी? The direction of J is, the direction of J is same as that direction of positive charges. बेटा इसकी direction same है as that of the direction of the motion of positive charges. यहाँ बेटा motion लिखा, motion of किन charges की? Positive charges की. That is here conventional current. Now see here, यहाँ क्या लिखा? The electric current density at this point is defined as the current through this area, but this area should be around that point. Then how much current is passing through this divided by this area gives the electric current density at that point. Clear रही बात? हाँ बेटा आपको ये समझ में आई? तो देखो आप क्या लिखा हमने, I is equal to लिखा, J लिखा यहाँ I by I, तो इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ J is यहाँ I का करंट है, सॉरी I का एम्पियर है बेटा, तो डिवाइडेड बाय पर एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर. Therefore the SI यूनिट ऑफ J is एम्पियर मीटर को जब नीचे वाले को ऊपर लेंगे तो +2 बनेगा बेटा, -2. This is the SI unit of electric current density. Now see here, but one thing here should be that this area of cross section should be, that is this A, that is A is this area of this here, and if current is like this, then at that time the direction of J is same as that of the direction of current, but this should make an angle of theta, plane of cross sectional area. Not area is a vector quantity.
Area is a vector quantity, but this is the magnitude of area. Magnitude of area of the plane of area should make an angle of theta 90 with the direction of current. Then at that time, I is we write then J हम लिखते हैं इस वक्त current density I by E. Therefore यहाँ I किसके बराबर आएगा? I आएगा बेटा J के बराबर रिलेशन लिखेंगे. तो I किसके बराबर आएगा? I is equal to J into A. Now this is here, see my dear students, one thing here clear. Electric current is a scalar quantity, but J is a vector quantity and area is also a vector quantity. ज़हन में रखो, area is a vector quantity, area is not a scalar quantity, although it does not seem. But when we deal with the vector, जब हम deal करते हैं ना vector से बेटा, जब हम अप्लाई करते हैं area को न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करने के लिए अप्लाई करते हैं, वहां हम देखते हैं कि area purely area is a vector. So it has both magnitude as well as direction. Here it is a vector, here it is a vector. So multiply ऐसे नहीं हो जाएगी ना vector. तो हम लिखेंगे I is equal to J vector dot A vector. क्योंकि vector अगर area is a vector quantity, ये इसका मैग्नीट्यूड है यहाँ, ये बेटा मैग्नीट्यूड है, लेकिन है ना ये भी वेक्टर है ये भी, लेकिन कैसे इनको ज़रब करेंगे ना, या इनका डॉट होता है यहाँ क्रॉस होता है, तो बीच में क्या होगा बेटा, बीच में यहाँ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो बीच में इनको दोनों इसको ऐसे इस किस सूरत में लिखेंगे, ये इसको हम कैसे लिखेंगे जे, हम लिखेंगे वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए डॉट. सो इलेक्ट्रिक करंट इज डॉट रिलेटेड टू टू वेक्टर्स, दैट इज current density vector and A is area vector. A is area vector. Now the question arises, what is area vector and how along which is the direction of A and how we can draw the area vector. वो हमने already पढ़ा है ना, Gauss's law में पढ़ा है, electrostatics में पढ़ा है बेटा. ऐसी कहानी जा रही है यहाँ, बिल्कुल ऐसी ही. देखो हमने वहां पढ़ा था ना, थोड़ा देंगे हिंट, वहां हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, वो लिखा था E डॉट A लिखा था ना बेटा. देखो थोड़ा वहां हमने क्या, ये एरिया वेक्टर था और फ्लक्स ये थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये डिफाइन है एरिया के लिए, बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू एन एरिया, ये एरिया के लिए डिफाइन है. और बेटा फील्ड पॉइंट पर भी डिफाइन है, एरिया पर भी डिफाइन है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट भी डिफाइन है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जैसे कहते हैं ना वहां डिफाइन. एंड ए इज एरिया वेक्टर, इट इज सेम लाइक दिस. So current density is defined at every point, but I is not defined at every point, just like electric flux. What a symmetry, what a beautifulness here in these two equations. Hope you have got this. Now see dear student, this is scalar and flux is scalar. This is vector current density, electric field is vector. Area is a vector, area is a vector. This is in electrostatics, but this is in electrodynamics. This is important relationship in electrostatics, but this is important relationship there in electrodynamics. अब देखो क्या है, अब एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो बेटा कैसे, सी माइंड. तो मैंने यहाँ क्या लिखा, I is equal to J dot A. तो J dot A किसके बराबर है, यहाँ क्या लिखा हमने, ये यहाँ लिखा आया था J A. क्यों, एक्चुअली J dot A is equal to J A cos theta, because dot built up two vectors is J A cos theta, magnitude of this, and theta is the angle between J vector and A vector. Now the question arises here, what is here A vector? See my dear students. अब बेटा अगर मैंने ये यहाँ ले लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसका ये मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है A इज इक्वल टू, अगर बेटा इसका रेडियस है R, तो इसका मैग्नीट्यूड है पाई R स्क्वायर. एरिया का, एरिया कितना है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का. और अगर बेटे ये यहाँ है, आप इस पर क्या डालेंगे, ड्रॉ करेंगे, एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, मैग्नीट्यूड है इसका. हम एक लाइन आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल यहाँ लेते हैं A and that is perpendicular to this, but outward if it is a closed surface, if open surface then you can draw either, but here it is a closed, यहाँ outward ड्रॉ करेंगे नॉर्मल. This A is vector, the length of this vector is equal to the magnitude of this, and direction is outward drawn, it is normal to this. Here when current is flowing like this, I and J and A have here same direction. Ji and J current density have here same direction, so the area vector is also in the same direction. So theta here is 0, because area vector and J vector both are perpendicular to this plane of area of cross section. तो इसी लिहाज से हम लिखते हैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0, तो हम लिखते हैं I इज इक्वल टू JA, और फिर J लिखते हैं I by A when this plane area is perpendicular to this
current, but at the time this array vector is perpendicular to this is the same direction, इसका बेटा सेम डायरेक्शन है जो j की है, तो थीटा के दरमियान क्या है 0, यहाँ ये वेक्टर है, तो j ये मैग्नीट्यूड है, अब ये a किसके बराबर है, ये अब a वेक्टर का ये a वेक्टर कैसे लिखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू डायरेक्शन क्या है, यहाँ नॉर्मल लिखे हैं यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, तो n वेक्टर लिखे n कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर के जरा देने से इस मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको डायरेक्शन मिल गई, दैट इज एरिया वेक्टर। तो ये एरिया कितना है, ये बेटा यहाँ है पाई आर स्क्वायर, पाई आर दिस एरिया एंड n कैप, तो यह है a वेक्टर। अगर इसी a का क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड, तो खाली यहाँ मैग्नीट्यूड लिखेंगे बेटा मैग्नीट्यूड, तो ये a आएगा पाई आर स्क्वायर बिकॉज n कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये है, ये a है पाई आर स्क्वायर। ये मैंने एक देखा है ना यूट्यूब पर, किसी ने कहा कि एरे वेक्टर, एरे वेक्टर डिवाइड नहीं होता, ये इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड है, यहाँ मैग्नीट्यूड ये डिवाइड है, ये नहीं है, क्योंकि वेक्टर इज नॉट डिवाइडेड, वी कैन नॉट डिवाइड वन वेक्टर बाय अनदर वेक्टर, एंड हियर इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट इज दिस थिंग, होप यू हैव गॉट दिस, ओके। नाउ दिस इज व्हेन j इज, तो मैंने बेटा यहां लिखा I इज इक्वल टू j डॉट a, तो अगर यहाँ बेटा दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सपोज j भी यहाँ, ये यहाँ एरे वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में और j भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा के दरमियान 0, तो हम लिखेंगे I इज इक्वल टू j e cos थीटा cos 0 इज इक्वल टू 1, तो I इज इक्वल टू j e। अब क्या है, दिस रिलेशन इज वैलिड, दिस रिलेशन I इज इक्वल टू j डॉट a इज वैलिड व्हेन j is constant, when j is constant we can write I is equal to j dot a, but if j is not constant, if j is constant throughout this, that is here it is throughout this constant, current density है क्या actually, it is the lines, these are the current density lines, it is in the form of lines, but equidistant, when they are equidistant from each other, then at that time say we can say j is constant, जैसे यहाँ डेंसिटी है करंट की, यहाँ करंट है सेम, तो j है कॉन्स्टेंट। इसके लिए डायरेक्ट लगेंगे, न्यूमेरिकल के लिए बेटा जो करेंगे न्यूमेरिकल डायरेक्ट ही लगाना है, लेकिन बाय द वे इफ j इज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो नीट और IIT में क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा न्यूमेरिकल करने से बेटा यही बेहतर है कि आप ये समझ लें, अरे न्यूमेरिकल है क्या बेटा, मैंने देखा है ना बहुत से मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हुआ हूँ, वहां देखा क्या है मैंने बेटा, ज्यादा वहां बेटा ये नहीं होता है कि हम ज्यादा न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल करो जितना हो सके इतना करो, लेकिन न्यूमेरिकल से ज्यादा ये है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो और वही अप्लाई करो इन डिफरेंट सिचुएशंस। सी डियर, अगर a इज, इफ अगर j क्या है नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या करेंगे, यूज वी हैव टू यूज डिफरेंशिएशन, एंड तो यहां लिखेंगे di, और बेटा यहां लिखेंगे j लिखेंगे, ये एज्यूम करेंगे कांस्टेंट फॉर स्मॉल एरिया d, जैसे कि ये लिखते हैं ना बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम करते हैं, अगर E है कांस्टेंट, अगर E कांस्टेंट है तो हम फ्लक्स सीधे लिखते हैं ना बेटा E डॉट E, लेकिन अगर E इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर E इज नॉन, तो हम लिखते हैं ना बेटा डिफरेंशिएशन में d फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ए लिखते हैं ना बेटा। वैसे ही सेम केस है कि J अगर नॉन यूनिफॉर्म तो di क्या लिखेंगे, तो स्मॉल डिफरेंशिएशन की मैंने I नहीं, मैंने स्मॉल एलिमेंट में लिया, और इस स्मॉल करंट एलिमेंट में हम J मानते हैं कि स्मॉल एरिया एलिमेंट में J कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन एक्चुअली J इज चेंजिंग इन दैट सेंस, J यहाँ चेंज हो रहा है, देखो बेटा ये यहाँ चेंज हो रहा है along द रेडियस थ्रू दिस कोआर्डिनेट सेक्शन, J चेंज हो रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन हम छोटा एलिमेंट लेके समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल इस पर बेस होती है। अगर D एंड J आर इन द सेम डायरेक्शन, तो di आएगी बेटा J dA cos 0, तो cos 0 1, तो हम लिखेंगे सीधे di इज इक्वल टू j dA, लेकिन कब लिखेंगे बेटा, जब di इज इक्वल टू j dA लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ di इज इक्वल टू बेटा इंटीग्रेशन ऑफ g dA व्हेन d एंड g वेक्टर एंड j आर इन द सेम डायरेक्शन, बट d प्लेन इज परपेंडिकुलर टू j, तो ये I आएगा बेटा, ये आएगा यहाँ j, यहाँ लिखो यहाँ j डॉट d, लेकिन j d तब जब j और d इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन अगर नहीं तो j डॉट d लिखना है। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है, ये j डॉट d क्या है, अगर ये एरिया परपेंडिकुलर ना हो डायरेक्शन, करंट डायरेक्शन के, तो क्या लिखेंगे, देखो बेटा ये है करंट, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म j के लिए, मैथ पढ़ने करके इसको याद रखिए, नॉन यूनिफॉर्म j के लिए आप समझाओगे। अगर किसी ये होगा बेटा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन j dA cos थीटा,
लेकिन अगर ये केस है ऐसे, ये यहां है और एरे वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा है 0, तो नो प्रॉब्लम, तो cos 0 इक्वल टू 1, तो ये आएगा GD, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाय द वे अगर ऐसी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये कंडक्टर है, तो करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे जा रही है बेटा, तो जहां जिस डायरेक्शन में करंट जाती है, जिन्हें पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं ना, फ्लो ऑफ, इसी डायरेक्शन में जी डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, कन्वेंशनल करंट के। लेकिन ये क्या है बेटे, ये है एरिया, ये एरिया क्या है, इसका आर तो रेडियस है, एंड दैट एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये एरिया है, मैग्नीट्यूड है इसका पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट वेक्टर इज, बिकॉज इट एज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब ये किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, एक वेक्टर लेते हैं जो इसके नॉर्मल परपेंडिकुलर, ये है, ये ए है ना बेटे, ये ए है, दैट ए वेक्टर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। और इस लेंथ कितनी है इस वेक्टर, ज्योमेट्रिकली इसकी लेंथ है a पाई आर स्क्वायर, इसके बराबर इनटू n कैप, दैट इज ए वेक्टर हियर मींस इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू n कैप, ये है ये वेक्टर। लेकिन ये एरिया कौन सा है, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन इस वक्त क्या है, ये बनाता है बेटा, ये बनाता है थीटा किसके साथ, ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, द प्लेन ऑफ दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू, द प्लेन इज नॉट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ, क्योंकि करंट यहां नहीं जा रही, यहां जा रही है। तो आप क्या करेंगे, अब इस ए वेक्टर को हम इसको कम करेंगे ना रिजोल्यूशन, यहां लेंगे बेटा इस डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और बेटा यहां लेंगे ऐसे ए कंपोनेंट ए साइन थीटा। देखो कैसे यहां दिखाऊंगा, समझने की कोशिश करो, जबरदस्त पॉइंट है बेटा ये। ए को ये करता है रिप्रेजेंट कौन सा एरिया, दिस एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। नाउ आई विल ब्रेक दिस इनटू टू कंपोनेंट्स, ये है बेटा ए कॉस थीटा वेक्टर, और ये कौन सा है, अगर यहां थीटा हो, और ये कौन सा कंपोनेंट है, ए साइन थीटा। तो ये वेक्टर है, इस कंपोनेंट का वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका इतना है, लेकिन ये कौन सा एरिया है, ये परपेंडिकुलर होगा ना इस एरिया को, वो एरिया ये है, ये एरिया है। तो पता है इसका एरिया कितना होगा बेटा, इसका एरिया इसका ए कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट है ना ये ऐसे होगा बेटा, ऐसे होगा, ये देखो समझने की कोशिश करो, और ये है ए साइन थीटा। लेकिन बेटा करंट इसके पैरेलल में जाती है, करंट शुड बी पैरेलल टू द प्लेन, तो ये नहीं, हम ये ए साइन थीटा नहीं लेते हैं, तो हम इस वक्त बेटा ये लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट है इसका, ये वाला कंपोनेंट ही लेते हैं। तो ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, ये है ए कॉस थीटा, वेक्टर यहां है ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा एरिया, ये ए कॉस थीटा बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ये है। कुछ आई बात नहीं आई, बात समझ में छोड़ा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो क्या लिखेंगे यहां, तो हम लिखेंगे यहां आर इज इक्वल टू, अगर लिखेंगे जे डॉट ए, ये तो पता है कि ये ऐसे है। अब आ गया समझ में, ये कि ये डी का कंपोनेंट है, डी कॉस थीटा का कंपोनेंट है बेटा, यहाँ ए कॉस थीटा, अगर ऐसे जे डॉट ए लिखेंगे तो ये लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। तो बेटा यहां लिखेंगे जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। कब लिखेंगे, जब ये प्लेन जे के परपेंडिकुलर ना हो। तो ए को हम कंपोनेंट करते हैं, ये कंपोनेंट है ए कॉस थीटा, यही जो वेक्टर ए कॉस थीटा है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये प्लेन का, इस प्लेन का है ना इस मैग्नीट्यूड, तो ये प्लेन आता है परपेंडिकुलर टू दिस, लेकिन ये ए कॉस थीटा है। तो एक्चुअली करंट डेंसिटी इज नथिंग, इट इज J is equal to I by A perpendicular. That means the component of vector A that is in the same direction of J, but whose magnitude is the plane of this area, and that plane of the area should be perpendicular to J. Hope you have got this. Now simple numericals here. See my dear students. Simple numericals, करो numericals बेटा, इसी क्लैरिटी आ जाएगी, जल्दी करेंगे ये। देखो आप तमाशा numericals। पहला न्यूमेरिकल क्या है बेटा, अगर ऐसी है, इफ क्वेश्चन, अगर यहां ये एक कंडक्टर है बेटा, ऐसे इसका जो है ना ये और है रेडियस, और यहां बेटा चल रही है इफ करंट डेंसिटी इज जे, और यहां इन दिस डायरेक्शन है आई है, यहां करंट है, तो फाइंड आई देन।
if J is current density through it and R is the radius of this wire, this is a wire here, cylindrical wire, and this is area of cross section A. तो find then if अगर ये है find G कैसे मालूम करोगे बेटा? J find I, J तो दिया गया ना, J is known या J is given, J it is given. You have to find I, क्या मालूम करना है बेटा? I, J is given. If a wire is having radius R and current density through it is J given, right? Find I किसके बराबर? And R is the radius of this. यहाँ से यहाँ तक ये R है. तो क्या आएगा बेटा यहाँ? What is the current density through this? What is the current through this? Current through this is I is equal to J into J dot A. लेकिन J और A area vector are in the same direction, that is theta is 0 and that area vector represents this area. तो ये I आएगा J A cos theta, लेकिन बेटा थीटा कितना है यहाँ 0, तो cos 0 is equal to 1 because this is perpendicular to this. तो I आएगा बराबर J A, लेकिन J किसके बराबर है? A is pi r square. तो therefore this is magnitude here. तो I आएगा J ऐसे J से लिख दिया, यहाँ लिखा है ऐसे, हाँ अगर J ऐसे भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम. तो J A है यहाँ बेटा, क्योंकि cos 0 is equal यहाँ cos 0 है. तो J A किसके बराबर है? A is the area of this cross section, that is pi r square. ये आंसर है. बताओ टफ है इजी, लेकिन कब? when J is constant here J is constant. It is also given that J is constant. Now here the second question is if J is non-uniform. If J is non-uniform, सिंपल ये ऐसे ले लो बेटा. अगर ये है ये क्रॉस सेक्शन, यहां दिया गया है कि J है 4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यह J का वैल्यू, और R है 2 मीटर. R is 2 centimeter or 2 millimeter. Then find current. Then find I. You can easily find I because I is equal to J into A. J dot A, because J and A are in the same direction. हम सीधे लिखेंगे J because this is perpendicular to this J. तो J कितना हो गया? ये constant है 4 into A कितना है? pi r square, वो pi r square, और आप लिखेंगे 4 into pi है 22/7. तो r के लिखेंगे इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करो कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2/100 मीटर. तो ये बेटा आएगा, क्या आएगा यहाँ? 2/100 मीटर. तो इसको करो तो बेटा ये आपका आंसर आएगा. लेकिन ये किसके लिए? मुझे कैलकुलेशन से गरज नहीं है. यहाँ J कांस्टेंट है. जब J कांस्टेंट है तो सीधे लगाएंगे I इज इक्वल टू J डॉट A. फिर देखेंगे कि ये A इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है. परपेंडिकुलर. J is perpendicular to this A and J vector and A vector are in the same direction because this plane area is represented by area that is normal to it. हो गया ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो यहाँ, अगर J नॉन यूनिफॉर्म लेंगे, क्योंकि मुझे यही क्वेश्चन है और क्या है, कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करना है. न्यूमेरिकल ज्यादा करने से बेहतर है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो सेकंड न्यूमेरिकल ये है बेटा, अगर ये एक वायर मैंने ले ली, ऐसी ले ली वायर एक. नाउ दिस J is here. This J is now, ये जो J है, this is AR by R, where R is radius of this wire and R is radius of the wire, radius, and this A is constant. A बेटा क्या है यहाँ? Constant. But J depends. This is not unit, this J current density. This J depends upon R. That is, this J is varying. This J is varying radially along the radius. It is varying here. J is, क्योंकि R जितना R ज्यादा हो जाएगा, J ज्यादा, तो J ज्यादा हो रहा है यहाँ J, but along the radius. Readily it increase. तो कैसे करेंगे आप? फाइन, क्योंकि J यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है. मैंने कहा कि जब नॉन यूनिफॉर्म तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करनी है. डिवाइड दिस होल एरिया. ये इफ दिस इज फाइंड I. हमें मालूम क्या करना है बेटा? I मालूम करना है. देखो तमाशा बेटा. तो I कैसे मालूम करेंगे बेटा? हम क्या करेंगे? हम यही क्रॉस सेक्शन लेंगे और इस एरिया को डिवाइड करेंगे इनटू वेरी स्मॉल एलिमेंट्स एंड टेक वन स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग. हम लेंगे ऐसे बेटा. ये यहां से यहां तक बेटा है सोल्यूशन इसका. यहां से यहां तक ये बेटा है, यहां से ये ऐसी है.
यहाँ से आर है, तो बेटा यहाँ मैंने एट ए डिस्टेंस आर पर ले लो एक आर, क्योंकि वहां एक मैंने रिंग ले ली बेटा, यहाँ ऐसे लिखेंगे एट ए डिस्टेंस, यहाँ लिखेंगे एक छोटी मोटी सी ये रिंग है, ये रिंग ये है, ये रिंग जो एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर है, एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर और अराउंड इस एक छोटी रिंग विड्थ हैविंग विड्थ ऑफ दिस डी आर। तो इसका एरिया कितना होगा इस रिंग का बेटा, इसका होगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इनटू डी आर दैट इज डी ए इज स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट क्योंकि डिफरेंशिएशन करनी है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, तो हम जे लिखेंगे, आई लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है जे जे इस पे, तो ए भी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन ये यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ काम यहाँ ज्यादा जे की डेंसिटी वेरी हो रही है, तो इसलिए मैंने डिफरेंशिएशन की यहाँ। तो जे डी ए इस स्मॉल के लिए जे कांस्टेंट रहेगा, जे नहीं है जे कांस्टेंट, जे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस स्मॉल के लिए जे कांस्टेंट है। तो डी ए इसका एरिया डी है कितना है 2 पाई आर दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनटू डी आर इज इट इज विड्थ, डी आर इज इट इज विड्थ, ये थिकनेस है इसकी। तो यहां के लिखेंगे r इज इक्वल टू कहां से कहां तक 0 टू कैपिटल आर जाना है, 0 टू कैपिटल आर जाना है। यहां लिखेंगे यहां बेटा, यहां इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू आर, जे क्या लिखेंगे, जे का वैल्यू कितना है, बिकॉज इट इज वेरिएबल बट हियर फॉर स्मॉल एलिमेंट इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो डी कितना है, डी है 2 पाई आर डी आर। देखो बेटा कैसे करेंगे जल्दी देखो, तो ये आएगा r इज इक्वल टू, ये a कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे 2 पाई a बाहर आएगा और बेटा ये r भी बाहर आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन 0 टू r। देखो तमाशे बेटा, आप देखो तमाशे बेटा सीरियस स्टूडेंट्स। तो ये क्या रहेगा यहाँ r इंटू आर इज आर स्क्वायर डी आर। अब इसकी इंटीग्रेशन आपको आज है, तो बेटा ये i आएगा बराबर 2 पाई a डिवाइड बाई r, बेटा ये आएगा r क्यूब बाई 3, क्योंकि 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, और यहाँ क्या है 0 टू r लिमिट्स। तो करो सॉल्व इसको बेटा, तो क्या आएगा, किसके बराबर आएगा ये, तो बेटा ये आएगा i इज इक्वल टू 2 पाई a डिवाइडेड बाई r, ये 3 बाहर आएगा 3, तो यहां आएगा अपर लिमिट दैट इज r क्यूब माइनस 0 क्यूब, बेटा ये आएगा i इज इक्वल टू 2 पाई a r क्यूब डिवाइडेड बाई 2r, लेकिन डिवाइड बाई एक r इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 पाई a r स्क्वायर बाई, यहाँ 3 है बेटा, एक्चुअली यहाँ 3 है, 3 डिवाइड बाई 3, दिस इज द आंसर। लेकिन ये था, ये किसके लिए था, बेन करंट डेंसिटी इज वैरिंग, लेकिन वो इक्वेशन किसके लिए है, बेन करंट डेंसिटी इज कांस्टेंट। होप यू हैव गॉट दिस। एक इंपॉर्टेंट सी थोड़ी सी रिलेशन यहाँ करंट डेंसिटी और किसके बारे में, यहाँ बेटा हमने पढ़ा था ना, RV इज इक्वल टू NeAVD, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर I को डिवाइड करेंगे बेटा किसी A से, तो वो किसके बराबर आएगी, वो J है करंट डेंसिटी, तो यहाँ किसके बराबर आएगा NeVD। व्हाट इज दिस J, दिस J comes out to be NeVD. This is the relationship between drift velocity of electrons and current density. Hope you have got this question. Inshallah I will meet you next time. Till then, may Allah bless you. Have a nice day ahead. Good luck to you, my students.